والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ اور درود و سلام آخر الزمان پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بن کر تشریف لائے، اور ان کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اطاعت کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمودات عالیہ میں بھی مسلسل اطاعت اور فرما برداری کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ نافرمانی سے، معصیت سے مسلسل قرآن بھی روکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرمودات عالیہ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ لیکن ایسا شخص دنیا کی زندگی میں بھی جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، بہت ساری آفات، بہت سارے عذابات کا یہ شکار ہوتا ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں، اولئک فی الاذلین، کہ ذلت ان کا مقدر ہے۔ جب انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ کسی بھی زاویے سے عزت کا طلبگار ہو، عزت کبھی اس کا مقدر نہیں بنتی۔ کبھی آپ غور کریں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی مرتبہ شیطان کے واقعہ کا ذکر کیا۔ اس کے اندر ایک یہی سبق ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا کتنا مقرب تھا، جس کی زبان کے اوپر اللہ کی تسبیحات اور اللہ کی تحمید کے کلمات رہا کرتے تھے، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے قرب سے محروم ہوا، اور دوری اس کا مقدر بنی، پھٹکار اس کا مقدر بنی، اور اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے اسے زمین کے اوپر دے مارا۔ اللہ رب العالمین کے قرآن نے ہمیں واضح یہ پیغام دیا ہے کہ یہ میرے ہی بندے تھے جو نوح علیہ السلام کی امت ہے، لیکن وہ نافرمانی ہی تھی، وہ معصیت رسول ہی تھی، وہ نوح علیہ السلام کی مخالفت ہی تھی، کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسا طوفان آیا، ایسا سیلاب آیا کہ اس وقت کی ساری دنیا کو وہ بہا کر لے گیا۔ اور پھر سیدنا صالح علیہ السلام کی امت، سیدنا ہود علیہ السلام کی امت، ان کے واقعات کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ عاد و سمود کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ سمود وہ ہیں جن کے اوپر چیخ کا عذاب آتا ہے اور ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ کے نافرمان تھے۔ اور پھر عادیوں کے اوپر مسلسل کئی روز
अल्लाह रब्बुल आलमीन तेज और तुंद आंधी को छोड़ते हैं और वो लोग तहस नहस हो जाते हैं। सबब क्या था? मेरे मुहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह की नाफरमानी। और फिर जरा गौर कीजिए, शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आज़ाब की बारिश बरसती है, आग की बारिश बरसती है। मेरे मुहतरम भाइयों, सबब क्या था? रसूलुल्लाह की नाफरमानी। और फिर बनी इसराइल के वाक़यात आपके सामने हैं, मुसलसल बनी इसराइल पे अज़ाबात, बनी इसराइल के ऊपर मुसलसल आफात। सबब क्या है? वक्त के रसूल की नाफरमानी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह अपने कुरान में कहते हैं, मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नहीं है कि अल्लाह उनके ऊपर जुल्म करे। फरमाया वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये खुद लोग अपने ऊपर जुल्म करते थे। अल्लाह तो बेइंसाफ नहीं है। आज अगर मैं परेशानियों का शिकार हूं, अगर आज मेरे ऊपर और आप पर अगर कोई परेशानियों की बरमार है, आफात है, अगर अल्लाह की तरफ से कहीं कोई पकड़ है, ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आदिल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान नहीं है, अल्लाह रहीम और रहमान नहीं है। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, ये मेरे और आपके शामते आमाल है, ये उसका नतीजा है। और फिर जब इंसान अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, उसका फिर दूसरा जो नुकसान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर अपनी नेमतों को छीन लेता है। जरा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने इस कायनात के अंदर मबूस फरमाई, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह खुद एहसान जितलाते हैं। फरमाया मैंने मोमिनों के ऊपर एहसान किया है, किसको भेजकर? मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजकर। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, और कहाँ आई? मक्के के अंदर, मक्के में पैदा होते हैं, मक्के में जवानी, और फिर मक्के में अल्लाह अकबर नबूवत का ऐलान। लेकिन जब मक्के वालों ने इस नेमत की कदर ना की, अल्लाह ने उनसे ये नेमत छीन ली। फरमाया मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ो और मदीने चले जाओ। और उसके नतीजे में क्या हुआ? अल्लाह अपने कुरान में कहते हैं, अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा। फरमाया क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने ना शुक्री और ना कदरी करते हुए अल्लाह की नेमत का इनकार कर दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकजीब की, अल्लाह के रसूल की तालीमात से इन्हिराफ किया, और अल्लाह के रसूल को तरह तरह के मसालम उनके ऊपर ढाए गए। और नतीजा क्या निकला? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में जो नेमत थी, जिसको मक्के में अल्लाह ने मबूस किया था, अल्लाह ने फरमाया चलो मक्का छोड़ो और मदीने चले जाओ। और उसके बाद मक्के वालों का जो हाल हुआ, वो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही मक्का जिस मक्के के अंदर फलों का रिज़्क आता है, वही मक्का जिसके अंदर अमन व अमान का कोई मसला नहीं था। अल्लाह अपने कुरान में कहते हैं, वक़द ज़रबल्लाहु मसलन क़रया कानत आमिनतन मुतमइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बस्ती की मिसाल बयान करते हैं। अल्लाह ने बस्ती का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुफस्सिरीन का फहम ये कहता है ये बस्ती मक्का है। फरमाया मक्के के अंदर अमन भी था, अमन व अमान का कोई मसला नहीं था, रिज़्क भी वाफर मिकदार में आता था। और आप माशाअल्लाह साहिब शऊर हैं, आप जानते हैं किसी भी इलाके में रहने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है, एक अमन व अमान और दूसरा वाफर मिकदार में रोजी रिज़्क। अल्लाह फरमाते ये दोनों चीजें थी, लेकिन क्या हुआ? फकाफरत बिअनउमिल्लाह, इन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। और वो नाशुक्रापन क्या था? इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी की। और फिर नतीजा क्या निकलता है? मैदान बदर सजता है, और मैदान बदर के अंदर खानदान एक है, जुबान एक है, मैदान एक है, लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं? फरमाया फजर पर रिकाब, इनकी गर्दनें उड़ा दो और इनके छोड़ के ऊपर मारो। क्यों? वजह क्या है? ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी की है। और फिर 70 लोग तड़पे मैदान बदर में, 70 की मुश्किल बादी कहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी का नतीजा था। जरा गौर कीजिए, मैं बात को मुख्तसर किए देता हूँ। जनाब जुबैर बिन नुसैर फरमाते हैं, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या जिक्र किया है, जब कब्रिस फतह हुआ,
जनाब अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब जुबैर बिन मुसैब ने देखा, एक साइड पर बैठे आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। फरमाते हैं चचा बताओ तो सही, आज को रोने का मौका है, आज तो खुशी का मौका है। अल्लाह ने कब्र फतह किया है, अल्लाह ने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है, अल्लाह ने इस्लाम का परचम लहराया है, आप यहाँ बैठे आंसू बहा रहे हैं। फरमाया मेरे बेटे सुनो, वो लोग जो अल्लाह के हुक्म को पामाल करते हैं, अल्लाह की यही सुन्नत है, अल्लाह उनका इक़्तिदार भी छीन लेता है, अल्लाह उनकी इज्जतें भी पामाल करता है, अल्लाह उनकी आज़ादियां भी बर्बाद कर देता है। यही हाल कब्र वालों का हुआ जब इन्होंने अल्लाह के दीन को न समझा, अल्लाह के कुरान को पसे पुश्त छोड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तालीमात को पसे पुश्त छोड़ा और दीन इस्लाम से इन्हिराफ किया, अल्लाह ने इनकी आज़ादियां भी छीन ली और अल्लाह ने इनकी इज्जतें भी बर्बाद कर दी। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में इसीलिए मुझे और आपको बार बार कहते हैं अपने मामलात को संवारो, एक एक अमल के ऊपर गौर फिक्र करो। मेरा कौन सा अमल है जिसके ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर है, कौन सा मेरा अमल है जो मेरे अपने नफ्स की डिमांड है, मेरे मुआशरे की डिमांड है, मेरे खानदान की डिमांड है। मेरे मोहतरम भाइयों, सारी कायनात नाराज होती है तो हो जाए, लेकिन कहीं अल्लाह को नाराज ना कर लेना, कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नाराज ना कर लेना। होता क्या है जरा गौर कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको ये भी कहते हैं कि तू मुसलसल तसलसल के साथ अपने पैगंबर की इताअत कर, अल्लाह की इताअत कर। क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब एक शख्स गुनाह पे गुनाह किए जाता है, फिर उसका जिस्म, उसका एक एक अंग वो गुनाह करने का आदी हो जाता है, और जब एक इंसान नेकियों के तरफ चल निकलता है, उसके जिस्म का एक एक अंग फिर अल्लाह का फरमा बरदार हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, अपनी मिसाल देखिए, अपनी मिसाल, वो शख्स जो मस्जिद में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ता है, मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ता है, इधर उधर उसकी सोच भी हो, लेकिन जैसे ही मस्जिद में वो कदम रखता है उसकी जुबान पे ये दुआ जारी हो जाती है, यानी एक आदी हो जाता है जिस्म। अल्लाह यही कहते हैं कि तूने अपनी पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत में बसर करनी है, और तेरा एक एक उज़्व और एक एक अंग ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के ताबे होना चाहिए। और जब तुम्हें मौत आए, उस वक्त किस हाल में मौत आए कि तुम अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार हो। मेरे मोहतरम भाइयों, आप लोगों ने कितने ऐसे वाकयात सुने होंगे। मुसलसल इंसान जुबान से जो अदा करता है, बसा औकात वही अल्फाज बेइख्तियार उसकी जुबान से निकलते चले जाते हैं। मैंने तो ऐसे बहुत सारे वाकयात सुने भी और देखे भी। किसी ताजर से कहा गया, अल्लाह के बंदे आखिरी वक्त है, जरा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। वो यही कहते मर गया, ये कपड़ा बड़ा नफीस है, ये कपड़ा बड़ा प्यारा है। और कितने ऐसे लोग, हाफिज सईद साहब हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने भी एक वाकया जिक्र किया है जो इसी तरह का है कि जिस आदमी की जिस तरह की जिंदगी होती है, मौत के वक्त फिर उसके साथ उसी तरह का सलूक होता है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप अपनी जुबान से कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जारी कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। आप भी अपनी जुबानों से ला इलाहा इल्लल्लाह को मुसलसल जारी करें और अपनी जुबान को तर रखें। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ये आपका विर्द आपको तौहीद में भी कायम रखेगा, आपका ये जिक्र रसूलुल्लाह की इताअत में भी इंशाअल्लाह आपको कायम रखेगा। और जब दुनिया से आप जा रहे होंगे, इंशाअल्लाह ये जिक्र उस वक्त भी हमारी जुबानों से जारी हो जाएगा। याद रखिए, आखिरी बात है, सुनिए जरा, जब इंसान दुनिया से जाता है इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है, इसके आसाब, इसका जिस्म, इसका पूरा जिस्म बीमारियों की वजह से या किसी भी आर्जे की वजह से इंतहाई कमजोर हो चुका होता है। अगर उस वक्त ईमान भी कमजोर हो, जिस्म भी कमजोर, ईमान भी कमजोर, और दुश्मन इंतहाई ताकतवर शैतान फिर जब हमला करता है, फिर ये मरने वाला शैतान के हमले से बच नहीं पाता। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ वही बचता है जिसका
کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جس کا محمد رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں اس وقت پریشانیوں کے عالم میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے نکلنے کا کہ اللہ کے ساتھ وفا کیجئے۔ محمد